Hi everyone, welcome back to my channel. Today's video is not regarding the triple SPK strategy, not regarding EMRS, KVS, NVS और उसकी कट ऑफ और उससे related dates और इसके बारे में. Today's video is regarding a very sensitive topic which is abuse online, which is a reality of being a woman content online. I think most of the content who are women and who are providing the education content, not only me but all the other women who are there on internet and putting the strategies might face the same kind of criticism. First of all, look at the comment. Read it, properly read it. ये नोटिफिकेशन मुझे 2-3 दिन पहले आया था और इस मैं नोटिफिकेशन जनरली व्हेन आई देन आई रीड इट एंड देन आई कमेंट एंड रिप्लाई द कमेंट्स जितने भी होते हैं उनका एंड व्हेन आई कमेंट it took me a while to understand the kind of mentality a person have while writing a comment. I tried to open the notification, but I could not. Maybe it was deleted by the YouTube, or maybe it was deleted by the person who has written it itself. Okay, then I searched the ID, could not find that as well. That ID itself is deleted. Maybe by the YouTube or maybe by the person itself. Okay, but the kind of hatred towards a woman can be shown, like writing the thing hotel room mein, which is normal. The word, which is normal, and the kind of sexual harassment you have given on internet, is it normal? I don't understand the behavior and the mentality of people who are sitting behind the camera and writing anything. Typing these things doesn't make you shrink or doesn't make you think even to twice कि BNS के एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर भी कुछ हो सकता है लीगल एक्शन. आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन आप कुछ भी लिख दोगे एंड यू विल नॉट बी कॉट एवर? सी टुडे इंटरनेट के वर्ल्ड में आपको अगर लगता है कि आप कैमरे के पीछे हो और आप कुछ लिख रहे हो तो यू विल नेवर बी कॉट और आपके ऊपर कोई भी धारा नहीं लग सकती है. आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी को भी कुछ भी थ्रेट दे सकते हो. तो प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा लॉ है अच्छा, काफी हमारे लॉ के अंदर है एक्ट सेक्शंस जिसके तहत आपको जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है. देखो, आपने कमेंट तो डिलीट कर दिया, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे क्योंकि आप मुझसे इतना ज्यादा हेट करते हैं, क्योंकि आपने इस तरीके का प्रयोग किया है. व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू थिंक आई एम प्रोवाइडिंग? I am providing you the education related videos. I was not making videos these days because it took me some time to realize कि is it right to put videos online? Is it safe? But I talk to my parents, I talk to my siblings, my cousin, and it is normal these days and people can write anything to put you down. मैं इस बारे में बात करती रहूंगी. those who can relate to it please stay, those who want to listen, and especially girls, आप लोगों को definitely सुनना चाहिए क्योंकि 1 every 3 women are being harassed every day. India is becoming a crime capital, especially Delhi. ठीक है, 40% women are facing harassment on a daily basis. What kind of world we are living in? थिंक अबाउट इट. विमेन मतलब लड़की हो तो मतलब ऑब्जेक्ट, लड़की हो तो मतलब एनी मैन और मेल सोसाइटी मेल पर्सन कैन कम एंड से एनीथिंग टू यू. लड़की हो तो मतलब क्या? टुडे विमेन आर, रशिया का कभी सर्वे पड़ेगा, ठीक है, इतनी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं. कभी छोड़ो, इंडिया में ही देख लीजिए आप, ठीक है, वो आईएएस बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, महिला प्रधानमंत्री हमारी रह चुकी हैं. इंडिया करते हुए इतनी सारी लेडीज रह गई, चली गई, रह गई हैं. मतलब उनसे कुछ सीखो. एवरी गिविंग बर्थ टू अ मेल पर्सन. टुडे इफ अ वुमन वांट्स ना, तो उनको मेल की भी जरूरत नहीं होगी टू गिव बर्थ. अंडरस्टैंड वेयर वी आर हेडिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ कमेंट यू आर राइटिंग. आर यू इवन, आई थिंक आप या तो बहुत ही ज्यादा नेम, या फिर आपने एजुकेशन के नाम का ई भी नहीं पढ़ा है, या फिर आप एजुकेशन तो ले रहे हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो. द कमेंट यू आर प्रोवाइडिंग हेयर, think about the people living in your house. If they ever see you writing these things, do you think they'll be proud of you? Do you think कि उन्हें लगेगा हाँ मेरा बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है? People don't understand the repercussions anyways. Especially, I'm going to show you my skincare also while talking about this thing because I have to normalize such things. And normalize करने का मतलब ये नहीं है कि you should tolerate, you should criticize then and there. Healthy criticism is required, and I love the kind of criticism when people talk about the type of content I'm providing which is not appropriate, the kind of cutoff I'm providing, yeah, the kind of
content I am making, is it appropriate or not? If people say कि मैम ये चीज सही नहीं है या दीदी ये चीज सही नहीं है, then I try to improve it. I am not a born and मैं by birth नहीं learn करके आई हूँ कि YouTube पे content कैसे बनाना है. I am learning. It is the learning phase. मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ and I am making content because I am in my learning phase. तो बाय बर्थ कोई नहीं सीख के आया होता है. आई डोंट इवन रिमेम्बर कि आई हैव एवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी इंटरनेट, इवन इफ आई एम नॉट लाइकिंग द कंटेंट ऑफ एनी टीचर एंड आई थिंक वो मुझे नहीं समझा पा रहे हैं या फिर मैं उनका कंटेंट नहीं समझ पा रही हूँ, तो आई डू नॉट गो एंड टाइप द कमेंट, अरे बहुत बता रहे हो, मत पढ़ाओ, यूट्यूब छोड़ दो, क्या है करने की जरूरत, तुम्हारा क्या, एंड व्हाट इज दिस. मतलब जिन लोगों का खुद का कभी कोई एग्जाम नहीं निकला, दे आर कमिंग ऑन इंटरनेट एंड सेइंग कि आपने किया क्या है आज तक, मतलब आप क्यों वीडियोस बना रही हो, आप खुद क्या की हो अपनी लाइफ में. और जो ये कमेंट लिख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर मैम आपने क्या किया है, एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, माय पेरेंट्स आर नॉट प्राउड, मतलब ये भी सब भी लिखते हो. अरे हैव यू एवर टॉक टू माय पेरेंट्स, हैव यू एवर टॉक टू माय सिबलिंग्स, मतलब कैसे आपके दिमाग में ये सब चीजें आती हैं कि आप ये चीज लिख पाते हो कि आपने किया क्या है, आप ऑनलाइन कंटेंट क्यों कर रहे हैं, इनसे पढ़ने से अच्छा है खुद से पढ़ लो, इनका खुद को कुछ निकला नहीं. और जो वो लोग लिख रहे हैं, एंड सम वुमेन, कुछ लड़कियां जिनको आई थिंक दे कैन नॉट सी अदर वुमेन ग्रोइंग अप. I don't know where we are heading, what kind of society we are living in. Anyways, let's decode my skin care along with this. I think इस पे भी comment बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि ये तो स्किन केयर करती रहती है, ये क्या पढ़ाई कर पाएंगी. It is not. I can do everything, everything. I can dance, I can do skincare, I can do makeup, I can art, I can do drawing, I can sing, I can make content, I can read, I can do anything. I have the power. You say it and I will do it. तो आप मुझे इससे रोक नहीं सकते करने से, या फिर आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं कर सकती. मैं कुछ भी कर सकती हूँ. आई एम अ वुमेन एंड आई हैव ऑल द पावर्स टू डू एनीथिंग. ठीक है, स्पेशली ऑल द वुमेन आउट देयर, if you can give birth to a child, then you can achieve any milestone in your life. Do not get and or do not get demotivated by such comments. If you want to make content, get up, make content. Do not think about the अदर पर्सन. का काम है कहना, जो कुछ नहीं कर पाए हैं वो यही बोलते हैं कि आपने क्या किया है. और डेफिनेटली मैं आप सबसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, स्पेशली ऑल द वुमेन आउट देयर, कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कभी भी लाइफ में कोई भी टाइप का हेरासमेंट हुआ है सिंस द डे यू आर बॉर्न टिल नाउ, यू आर इन 30s, यू आर इन 40s, और you got married to a person, किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म अगर आपको मिला है, तो प्लीज कमेंट डाउन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी women आर फेसिंग द सेम थिंग व्हिच आई एम फेसिंग एंड दे माइट रिलेट इट. क्योंकि अगर मेकअप कर रही हो, आपने पढ़ाई नहीं किया, अगर आप अच्छा खाना नहीं बना पाती हो, तो यू आर नॉट अ गुड हाउसवाइफ. इफ यू आर नॉट एबल टू अपील योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और उनके क्राइटेरिया को, तो यू गुड बहुरानी. कल कुछ अचीव नहीं कर पाया इन योर लाइफ, नॉट अ गुड डॉटर टू योर पेरेंट्स. ठीक है, वाई ऑलवेज वुमेन, मतलब वाई. ये जिनसेंग एसेंस वाटर था ब्यूटी ऑफ जोसियन का, जो मैंने यूज किया है नाइट स्किन केयर में, मैं यूज करती हूँ, वो तो ये ले सकते हो. मैं सबके कमेंट, वो सबका लिंक पेस्ट कर दूंगी. तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो यू आर बीइंग जज्ड एवरी डे फॉर बीइंग अ वुमेन. ठीक है, स्पेशली स्टॉप अपीलिंग द अदर पर्सन, स्टॉप saying that you are not good in doing something. It is okay if you don't know anything. It is okay and it is normal if you think that you do not require to everybody every day. ठीक है, उनको खुश करने की जरूरत नहीं है. अगर आप आज कुछ चीजें अच्छा कर रहे हो, तो कल दे विल क्रिटिसाइज यू फॉर बीइंग, फॉर नॉट बीइंग गुड. अगर आपने अपने लिए कुछ कर लिया, देन दे विल आल्सो क्रिटिसाइज यू बिकॉज यू आर अ वुमन. एंड आपको बढ़ते हुए देख नहीं सकते ना लोग. अगर आप आगे, तो उन्हें लगेगा कहीं आपके पर ना लग जाए और आप उड़ने ना लगो. अगर आप उड़ने लगोगी, तो उनको लगेगा कैसे इनके पर काटे जाए ताकि ये हमारी बात सुने और हमारी बात सुन के घर में ही रहे. तो स्टॉप. हम 2026 में भाई, थोड़ा तो मेन आउट देयर,
women आउट देयर जो दूसरों का टांग खींचती हैं, उनको लगता है कि नहीं ये लड़की है, ये लड़का आगे कैसे बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा पीछे हो। हाँ, हमेशा एक लड़के के पीछे ही लड़की को रखो। तो उन सब औरतों के लिए भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट इज डिफरेंट, इक्वली स्टैंडिंग इज डिफरेंट। ठीक है, यू कैन रिस्पेक्ट अ पर्सन इक्वली एज मच एज यू आर रिस्पेक्टिंग अ मैन। ठीक है, यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, ना कि लड़का या लड़की की। इक्वल पेस पे सारे लोग सारे काम कर सकते हैं, सब में सब कुछ करने का बलबूता आज के ज़माने में। तो स्टॉप जनरलाइजिंग दीज थिंग कि men कैन ओनली डू सच टास्क, women कैन नॉट डू एनीथिंग। तो स्टॉप डूइंग दिस। हम 2026 में आ गए हैं बहनों, और स्पेशली दोज मेल पर्सन जो ये बहुत नॉर्मलाइज करते हैं और उनको लगता है कि women इज अ ऑब्जेक्ट और उसे किसी से ट्रीट किया जा सकता है, तो स्टॉप डूइंग दिस। ये नायासिनामाइड था प्लम का, और इससे पहले मैंने लगाया था सेंटला का एम्प्यूल। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इससे पोर्स वगैरह सब कुछ मिनिमाइज होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये बहुत पहले टेरा से ऑर्डर कर लिया था, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आई एम इन माई 30s, सो आई हैव टू यूज सच प्रोडक्ट्स टू मेक माई स्किन लुक गुड। क्योंकि इस पे भी बात कर लेती हूँ, ऐसा क्यों? देखो, मैंने बोला आप लड़की हो, क्रिटिसिज्म तो हर जगह से आता है। बीइंग अ गर्ल इज अ ड्रॉबैक। तो अगर आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपको क्वेश्चन किया जाएगा, अरे लड़की तो कितनी छोटी है, अरे इसके तो पिंपल्स आते हैं, ये तो बहुत मोटी है, अरे ये तो मेरे लड़के की हाइट की थे, अरे ये तो गोरी ही नहीं है, मेरा लड़का तो कितना लंबा, कितना गोरा, कितना सुंदर है। अब क्या करें, जीना छोड़ दें, मर जाएं? रेटिनॉल ये सेलीमैक्स का है, तो उन सबको खुश करने के लिए आपको नहीं करना है, अपनी हेल्दी स्किन के लिए आपको करना है। अगर यू आर अर्निंग डिसेंट एंड इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक योर पैम्पर कर लो अपने आप को, किसी मदर इन लॉ को अपील करने के लिए नहीं, किसी लड़के के गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, खुद की सेल्फ केयर के लिए। ठीक है, अगर आप सुंदर भी दिखती हो तो आपको किसी और तरीके से हरास किया जाएगा, अगर आप लंबी भी हो तो भी आपको किसी और तरीके से हरास किया जाएगा, लेकिन अगर आप ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो आप तो हरास होगे ही होगे। ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो हर दिन कोई ना कोई आपके आपके इन लॉज नहीं बोलेंगे, आपके हस्बैंड नहीं बोलेंगे, आपके सिबलिंग्स नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, बट रिलेटिव्स बोल देंगे, आजू बाजू पड़ोसी बोल देंगे, बॉस बोल देगा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो लोग बोल देंगे, जो आपको जानते नहीं, जिन्होंने आपको कभी देखा नहीं, वो सब आपको जज करेंगे। मतलब जज करने के लिए ही पैदा हुई थी, और फिर वैसे ही जज करते करते आप एक दिन, तो इसीलिए खुश रहो, इन सारे चीजों से दूर रहो, पढ़ाई करो, जितना हो सकता है पढ़ाई करो। ठीक है, अपने आप को कहीं स्टैब्लिश करो। वंस यू स्टैब्लिश योर सेल्फ, पीपल विल कम टू यू एंड से, सारे आपके ड्रॉबैक कम हो जाएंगे, आपकी सुंदरता, आपके गुण सब कुछ निखर के बाहर आ जाएंगे। लोग आपसे स्ट्रैटेजीज पूछने लगेंगे, आपको पूछने लगेंगे आपसे, आपके बारे में, पूरे खानदान में जो लोग बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं हुआ इसका, या फिर क्या ही कर पाएगी, क्या कर सकती है, चप्पल चटका के आ जाएंगे, ये वो, जिस तरीके का भी बिहेवियर होता है, जो भी बातें होती हैं, उन सबको एकदम हटा दिया जाएगा, और आप बहुत महान व्यक्ति बन जाओगे। इस पूरी दुनिया के इतने महान व्यक्ति कि आपसे ज्यादा अच्छा संस्कारी सीधा कोई है ही नहीं। ठीक है, मॉइस्चराइजर आई यूज इट। वैसे तो मैं द फेस शॉप का ही यूज करती हूँ, वो पॉमीग्रेनेट वाला, लेकिन अभी मैं वो लाना भूल गई हूँ, तो मैं ये यूज कर रही हूँ, व्हाइट सीड ब्राइटनिंग लोशन। क्योंकि रेटिनॉल रेटिनॉल जो भी लगाने के बाद में मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है, वो सैंडविच वाला लेयर बनाना। ये मुझे फ्री भी आया था। मैं आपको धीरे धीरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी दिखा दूंगी कि क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या मैंने रीपरचेज किया है अभी, तो वो सब भी। रेटिनॉल लगाने के बाद में आप अपने फेस को सैंडविच पोजीशन में, और ये 2-2 3-3 मिनट के गैप के बाद लगाते हैं। ये मेरा एक्चुअली जो ये मार्क्स है ना, मेरे पिंपल मार्क्स, ये सारे मार्क्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और आई गेस काफी सारे प्रोडक्ट्स, अब मुझे एक प्रोडक्ट तो नहीं पता जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन मैं
2-3 ऑर्डिनरी का मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग में मैं बायोडर्मा भी यूज़ करती हूँ और वो पोमीग्रेनेट तो है ही, लेकिन मैं सनस्क्रीन कभी स्किप नहीं करती। एवरी डे आई यूज़, क्योंकि जब से एक मेरी फ्रेंड है, वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी शी इज़ अ डर्मेट, तो उन्होंने बोला है कि नेवर स्किप योर सनस्क्रीन इवन इफ यू आर एट होम। ठीक है, तो आई जनरली स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। तो उससे लिटरली फर्क दिखा है जब से मैंने सनस्क्रीन लगाना शुरू किया है, एंड आई एम सीइंग द चेंजेस, क्योंकि मेरी इवन टोन हो रही है स्किन, एंड आई एम नॉट गेटिंग एक्नेस, because earlier I used to take a stress a lot and I don't sleep 6 to 7 hours भी मैं मुश्किल से सोती थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में काम करती थी। बट जब से मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव किया है एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड आउट, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होना शुरू हुआ है एंड माई स्किन इज ऑल्सो शोइंग रिजल्ट। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैंने हेल्दी डाइट खाना शुरू किया है एंड आई ऑल्सो ज्वाइन जिम। काफ़ी टाइम से मैं बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ जी रही थी, जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली आई वाज वर्किंग एंड देन घर पे आके पढ़ाई करना, तो बहुत सारी चीज़ें मैच्ड अप थी, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। सो आई थॉट कि अभी इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक अ ब्रेक, और बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। ठीक है, तो ये स्किन केयर हो गया। हाँ, नाउ आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या मंगवाया था। ये तो मेरा सबसे फेवरेट है, दिस इज माई, रुको मैं पहले लिप बाम लगा लूँ। ये मेरा विश केयर का टिंटेड लिप बाम है। पहले मैं नॉर्मल ये इसका बिना उसके क्या बोलते हैं नॉन टिंटेड था, वो मैं यूज़ करती थी। लिनेज का भी है मेरे पास, बट मुझे लगता है वो थोड़ा सा थिक है और उसकी वजह से मेरा लिप डार्क हो रहा है। ठीक है, लिप डार्कनिंग ज़्यादा हो रही थी लिनेज वाले से। अब पता नहीं आप लोगों की भी होती है नहीं, जिसने यूज़ किया है प्लीज़ उसे मुझे बताना। ऑल्दो सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, बट मुझे उससे लिप डार्कनिंग फील हो रहा था, तो मैंने ये एसपीएफ वाला यूज़ किया है विश केयर का। ये काफ़ी अच्छा है। एक मेरे पास इंडी ब्राउन का भी था और मेरे पास द फेस शॉप का विटामिन ई है, वो भी था, बट मैंने उनको यूज़ नहीं किया है। ये मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है, बट ये मुझे अच्छा लग रहा है। वन सेरामाइड मोची टोनर है ये, टोनी मोली का। ठीक है, टोनी मोली का ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, बहुत ही एक्सेलेंट टोनर है ये, तो मैंने अभी इसे रीपरचेज किया है, दिस वन। ठीक है, रिसेंटली मैं सबको टैग कर दूंगी, तो ये बेस्ट था मेरे लिए तो, और खत्म भी नहीं होता ये 1250 का था अभी सेल में, तो बहुत मतलब बहुत टाइम, 1 साल से ऊपर हो गया इसे चलते चलते। ठीक है, ये था जो जिनसेंग, सबसे पहले मैंने ये रात को मैं यूज करती हूँ, ये भी मेरा खत्म हो गया था, तो मैंने इसे दोबारा से रीपरचेज कर लिया है। मैं क्या करती हूँ, इनका एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है। एप्लीकेशन इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक होल है। देखो ये वाला तो बंद है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना सिर्फ एक इस तरीके से एक होल, हाँ एक होल है, जिसकी जिससे निकालना एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने इन लोगों को ऐसे बॉटल्स मीशो से मैंने ऑर्डर की थी, इसमें भर लिया, ऐसे ऐसे स्प्रे करके आप लगा सकते हो, इजी हो जाता है एप्लीकेशन इसका। ये भी मैंने ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी का है, ये खत्म कर दिया। ये मैं स्कैल्प पे यूज करती थी, बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो या फिर ये जो आपके, अभी आपको होगा कि नहीं, ये सारे जो होते हैं डार्क, बहुत डार्क हो जाते हैं, तो ये सब मेरा जब से मैंने यूज किया है, यहाँ का टेक्सचर काफी इंप्रूव हो गया। आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट अंडर आर्म्स, अगर आपके अंडर आर्म डार्किंग है, या फिर स्कैल्प पे, मतलब ये बहुत मल्टीपर्पज का, तो आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। और इससे ऐसे सुनते हैं डेली, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड 7% है और पीएच इसका 3.6 है, तो आप अगर चाहो तो इससे कॉटन पैड में फेस पे भी यूज कर सकते हो, ताकि आपके जो ये फेस स्पॉट्स है ये भी कम हो जाए। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था। उसके साथ साथ जब मैंने ऑर्डिनरी का तो गया था, एक और चीज है ऑर्डिनरी का, दिस वन, ये है नायासिनामाइड और 10% और जिंक 1%, ये भी बहुत अच्छा है। मैंने हमेशा से यूज किया है, इसकी 2-3 बॉटल मैं खत्म कर चुकी हूँ। तो इसको तो ऑर्डिनरी का ये तो मैंने नायका से बनाया, लेकिन द फेस शॉप का 2-3 प्रोडक्ट जो मैं, एक पोमीग्रेनेट का क्रीम है वो यूज करती हूँ, वो मैंने मंगाया था, तो मुझे उसके साथ में ना काफी फ्री भी मिला है। तो उसमें मुझे व्हाइट सीड्स का ये फ्री भी मिला है, दिस वन। ये टोनर, मॉइस्चराइजर और सीरम चीज है इसमें था। वो मेरी क्रीम 2500 कुछ की है, और ये जो मुझे फ्री मिला है, इस पर लिखा नॉट फॉर सेल, तो ये जो मुझे फ्री मिला है ये मैंने ऑनलाइन देखा था, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ द सेम प्राइस। ठीक है, तो ये आपको फ्री मिल जाएगा, वो कभी कभी उनके पास ऑफर सेल आती है उसमें का। नायासिनामाइड, ये मैं डे टाइम में यूज कर सकती हूँ, और इसमें इसके साथ तो मुझे बहुत सारी चीजें फ्री मिली हैं, आई विल शो यू। अभी तो ये आया था फ्री, ठीक है, इससे पहले मुझे ये आया था
सारी फ्रीबीज आई थी, अंदर रखी है शायद ये। इसके साथ में मुझे बहुत सारी फ्रीबीज आती हैं, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने आई गेस शॉप से ही ऑर्डर किया था, 6 AM ग्लो। दिस इज ऑल्सो रियली गुड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्लिंजर भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर मैंने प्लम का विटामिन सी भी यूज किया है, ये बहुत अच्छा है, तो मेरा ये खत्म हो गया था, मैंने तो उसे रीपर्चेज किया। इसका मेरे पास दोनों है, एक ये वाला भी और एक ये व्हाइट वाला भी। अब इसका क्या काम, मैं यूज करती हूँ फॉर टोन ब्राइटनिंग। ये काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इससे मेरे पोर्स लिटरली मिनिमाइज हुए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये यूज कर लो, ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये टीरा से ऑर्डर कर लिया था, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। ये तो खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, तो ये मैंने रीपर्चेज किया है, मेरी बॉटल खत्म हो गई थी देन, इसलिए। ठीक है, देन द सनस्क्रीन, हाँ ये मैं बोल, ये मुझे फ्री भी बहुत सारे मिले थे, ऐसे मुझे पूरा एक बॉक्स भी मिला था, ये भी मुझे पहले मिला था। मेरा भाई ये यूज कर रहा था, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। विश केयर का थोड़ा सा लिक्विडी फ्लो में है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। नॉनवोलॉजी का मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉनवोलॉजी का सनस्क्रीन अगर किसी ने नहीं यूज किया तो एक बार यूज करके देखो, दैट इज ऑल्सो गुड। मैंने ये फिक्स डर्मा का शेडो 50+ SPF लिया है, ये भी अच्छा है। ठीक है, देन आई ऑल्सो टेल का मैं लाना भूल गई, फॉक्सटेल का भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, मैं अभी डेली यूज में तो उसे ही यूज कर रही हूँ। और उसके साथ में मुझे फॉक्सटेल का जो मैंने मंगाया था, तो उसके साथ में मुझे ये पैकेट में आए थे, तो ये मुझे फ्री भी मिला था। देन व्हाट, ठीक है, मुझे विश केयर बहुत सारे फ्री भी मिले थे, जिसमें एक शैम्पू ये है, देन आई थिंक ये भी है बाय बाय डल स्किन फेस वॉश। ये पता नहीं किसके साथ आया था, बट ये भी फ्रीबी ही है। बहुत सारे फ्रीबीज मिलते हैं भाई, आप यूज कर लो। हाँ, विश केयर का एक और हेयर फॉल शैम्पू, ये भी फ्रीबी आया था मुझे। ठीक है, देन आई एम यूजिंग पेप्टाइड मिनिमल, दिस वन, ये भी बहुत अच्छा है फॉर स्किन, डेली यूज में मैं यूज कर रही हूँ। फिर मैंने पिलग्रिम का 15% का सीरम भी यूज किया हुआ है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया है, ये भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उसका यूज किया है। मतलब अब मैंने मंगाया है प्लम वाला। देन विश केयर का हेयर फॉल के लिए जो डेली सीरम है, मैं 6-7 बॉटल खत्म कर चुकी हूँ, ये दिस रियली वर्क्स। तो मेरे बेबी हेयर, आपने कभी मेरे वीडियोस में देखोगे, छोटे छोटे बेबी हेयर्स बहुत सारे आ जाते हैं, वो है। देन इंडी ब्राउन का मैंने ये वाला ऑयल मंगवाया था, मेरे पास टीरा के फ्री पॉइंट्स थे, उसमें मुझे 900 फ्री पॉइंट्स थे, तो उसमें से ये आ गया था 900 का, ये खत्म हो गया। देन मैंने दूसरा बॉटल मंगाया, ठीक है, ये आधा है अभी बाकी, तो ये जब खत्म हो जाए रीपर्चेज इट, तो ये भी हो गया। देन व्हाट बताई दिया, रेटिनॉल, ये सबसे अच्छा है, वायरल प्रोडक्ट चल रहा है अभी ऑनलाइन, सेलिमैक्स का, तो मैंने ये अभी यूज करना शुरू किया है। लेट्स सी कैसा प्रोडक्ट है ये, अभी इसमें शो ही नहीं हो रहा है, मैं टैग कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, क्यों हमेशा कोई भी आपको टिंटेड सनस्क्रीन बाहर जा रहे हो तो ये लॉरियल लगा लो, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, तो दिस इज अ डेली यूज वाला मेरा। बाकी दैट इज इट, माई स्किन केयर में बहुत सारी चीजें और भी हैं छोटी छोटी, बट दिस इज ऑल। और विश केयर का ये हम अभी मैं करेंटली यूज कर रही हूँ। सो ओवरऑल तो वीडियो था, कमेंट विच आई हैव ऑलरेडी शोन। बस मुझे आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं कि ये सब तो चीजें हटा दो, मैं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो हैव टू शो समथिंग, तो मुझे आपको बताना था। लेकिन एज अ वुमेन आई वांट टू आस्क यू समथिंग, एनी वुमेन ऑन इंटरनेट डिजर्व सच काइंड ऑफ हेट्रेड फॉर बीइंग अ वुमेन? और स्पेशली लड़कियां, आप अगर हो, आपने कभी का हरासमेंट को फेस किया है, तो नेवर नेवर कीप योरसेल्फ इन अ साइलेंट मोड, और हमेशा स्पीक अबाउट इट टू योर सिबलिंग, टू योर लव। आप हमेशा इस चीज के बारे में बात करो, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एट द रॉन्ग साइड और यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। दैट्स, शायद बचपन में भी मुझे इस तरीके का हरासमेंट हुआ होगा फील, बट मैं कभी डरती थी, अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाए बाय आप, या किसी को बता नहीं सकते थे, बिकॉज यू थिंक यू आर एट द फॉल्ट, बट ऐसा नहीं होता है। आई गेस आपको जिनसे भी आपको लगता है आपको बात करनी चाहिए, आप डेफिनेटली उसके बारे में बात करो। uh, मैं ये वीडियो कोई सिंपैथी के लिए नहीं बना रही हूँ, ना ही मुझे इस वीडियो में आप लोगों से जानना है कि नहीं आप मुझे सिंपैथाइज करो, आप मुझे बताओ। इट इज अ नॉर्मल थिंग which I am saying because every other girl is facing the same issue. I have talked to so many women, मेरे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, और उन सब ने अपनी लाइफ में कभी इस चीज को फेस किया है, इंक्लूडिंग माई ब्रदर, इंक्लूडिंग माई सिस्टर, एंड स्पेशली दोज जो हॉस्टल्स में थी, दोज फ्रेंड जो मेल फ्रेंड्स भी हॉस्टल में रहते थे, दे एवरीबडी faced kind of this kind of harassment, but we are in 2026 and we have to speak about it, we have to be vocal about the things, and we have to teach our coming generations that
these things are not normal. You have to tell the other person you are doing wrong and you will be liable for doing wrong. You have to inculcate some right habits to a into a person कि अगर आपने कुछ गलत चीजें सीखी हैं, बोलने वाला कभी कोई हुआ नहीं या बोला नहीं किसी ने, that doesn't mean कि other person will never speak about it. एंड स्पेशली वुमेन कि अगर अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आने वाली जनरेशन को आप कुछ सिखा सकते हो, स्पेशली नॉलेज गिव्स यू रिस्पेक्ट। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर इसमें फॉर्म स्टैंड करते हो फॉर योर डिग्निटी, देन यू शुड स्पीक अबाउट। एंड आई वुड सजेस्ट कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऑन द ओनली ऑन द इंटरनेट, बट आज आप अपने आसपास भी देखोगे ना, तो देयर आर सो मेनी पीपल हु विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। अगर आप कभी आगे बढ़ रहे होगे तो इट इज एविडेंट कि आपको क्रिटिसिज्म आएगा। बॉयज के साथ में जनरली ये बहुत कम होता है, उनके साथ भी होता है, लेकिन जनरली कंपैरिजन में लड़कियों को हाथ पैर पकड़ के ज्यादा रोका जाता है। बॉयज को इतना हेट्रेड या क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। वो चाहे तो 2-3 बजे बाहर जाएंगे तो नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन देम, बट अगर आप जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, आप गलत कुछ नहीं करोगे फिर भी आपसे क्वेश्चन होगा कि आप गलत नहीं हो, बट आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम वी एज अ पर्सन इज आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हम सामने वाले को कुछ अच्छा एजुकेट करके सिखा सकते हैं। द काइंड ऑफ कॉमेंट दिस पर्सन हैज रिटन, I am also requesting that person कि learn some sympathy, learn some empathy, ठीक है? Learn to respect the women, not only women, learn to respect anybody who is nearby you, whether it's a elder one or whether it's a हो बड़े हो, आपके घर में कोई रह रहा है, try to respect everybody. You are not a wise man if you are writing this. You are losing your education, showing that your parents have not taught you well, whereas they might have taught you well, but your friend circle, your surrounding is not, because of which you think that writing this will make you feel proud or आपको थोड़ा manly feel कराएगा. It is not right. You have to understand this thing. आप इस चीज को लिखने के बाद में बहुत ही छोटे स्तर पे गिर जाते हो एंड आप नहीं समझ पाते हो कि क्राइम में ये मैनलीहुड में क्या डिफरेंस है. यू आर डूइंग अ क्राइम इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मैनहुड. तो स्टॉप डूइंग दिस एंड डू नॉट एवर कॉमेंट ऑन एनीबॉडीज फीड. चाहे आप कंटेंट लाइक करो या डिसलाइक करो, you should not write anything. ठीक है, if you are not liking the person, simply do not follow that person, simply do not watch the videos and simply say that this content is not appropriate and चले जाओ. ठीक है, watch some other content which you think is relevant. तो but never disrespect a woman. If you will disrespect today, think about the future generation जिसमें आपके पास you are going to be a father. Do you think that this will transfer to your progeny? This will not be transferred, or karma is a dash. So try to understand this thing कि अगर आज आप अच्छा चीज कर रहे हो ना तो कल आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप आज गलत कर रहे हो तो कल भी आपके साथ गलत ही होने वाला है. ठीक है, आपको लगता है कि आपने ये जो मेरे लिए कमेंट लिख दिया है या फिर मेरे पेरेंट्स को इसमें इंक्लूड कर लिया या मेरी मम्मी को इसमें इंक्लूड कर लिया, आप अपनी मम्मी के खिलाफ या अपनी बहन के खिलाफ अगर आपके पास है तो कभी वो इस तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं फेस करेंगी बिकॉज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये सर्कल है. यहाँ पे जो आप करोगे वो आपके पास रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. So not only you, those who think that they are writing something like this to a woman, what is thing, please आप understand करो, this is not good. You are not going in a right direction. You will fall in a trap. You will fall in something very bad in future. अभी आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मे बी इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा क्राइम कमिट कर दो दैट यू विल बी बिहाइंड बार्स. सो डोंट डू इट. ठीक है, इट इज अ रिक्वेस्ट नॉट टू डू इट फ्रॉम अ वुमन टू अ मैन who is not even a man. So thank you for watching this video, and regarding the education related content I will be putting toward tomorrow, and daily मैं community post पे questions को post कर रही हूँ. Those who are interested can go and attempt those questions on a daily basis. From this I am also listing down all the things because I have almost completed my syllabus and I will be putting the things soon. So please stay tuned, please follow my channel and subscribe, and stay safe, stay healthy, and learn some empathy. Educate yourself, your family, and become a good human being. Thank you so much for watching the video, and I will tag all the products there.